So I think now you can unmute yourself. Okay. Am I audible now? Yes, you are. बढ़िया. Okay, so I think we can start now. Let me introduce. A very good morning to all of you and a warm welcome to the seventh session of our esteemed webinar series 24 in 2024, a series by Whiteboard Education and Research Foundation in association with Deltron Technologies. So it's an absolute pleasure to have you all join us today as we continue our journey of bridging the gap between corporate and education. Once again, we are back with our enriching sessions, and this is your host Shivangi. Today, we have a truly exciting and insightful session lined up for you all, that is entrepreneurship from idea to venture. So, I would like to extend a warm welcome to our guest speaker, Mr. Paritosh Anand, who will be sharing his insights in today's webinar. Mr. Anand is the co founder of Jenny Pads, which is a wholly owned brand of Vatsalya Wellness, which strives and thrives to create sustainable menstrual health through breakthrough products. Mr. Paritosh was ex-peace ambassador in the World Peace Tracts. Also, he was global ambassador from India in World Literacy Foundation. We are truly grateful to have his expertise and knowledge with us today. Thank you, Mr. Anand, for joining us, and we are excited to hear from you. I encourage each and every one of you to actively participate, engage with the esteemed speaker, and use this opportunity to deepen your understanding. Without further ado, please join me in extending a warm virtual welcome to Mr. Paritosh Anand. The virtual stage is all yours, sir. Thank you, Shivangi. Thank you, everyone. Suhas, Pramila, Celine. Actually, I'm still in my factory. हमारे ISO 45000 की ऑडिट चल रही है. So that's why from last day I am here only. तो थोड़ा सा वीडियो मेरा बहुत अच्छा नहीं आने वाला है, बट दैट्स ओके अगर वो चलेगा तो. वॉइस आ रही है? Yes, sir. ओके, ग्रेट. So hello everyone. Let me share my presentation. Is it okay? It's absolutely fine. Great. So I can expect हम लोग यहाँ पे जो बात करने वाले हैं ये ऐसा नहीं है कि आप पहली बार सुन रहे होंगे या पहली बार समझ रहे होंगे. जब से शार्क टैंक इंडिया में स्टार्ट हुआ है, सारे लोगों को बिजनेस स्टार्टअप में इंटरेस्ट तो बढ़ा है, ऑफ कोर्स, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग. नाउ द होल जर्नी ऑफ idea generation to executing it or to getting funds from the VCs or onboarding them on the board is a very hectic task, to be honest. Uh, I have received various offers after I am Ahmedabad, and those were very much lucrative. और that works like अभी भी जब offers आते हैं तो it's like कि क्या करना चाहिए. तो बहुत सारे distractions आते हैं from idea generation to refining it to make to making prototype to execute it, और फिर जाकर के आप प्रोडक्ट एक ऐसा बना पाते हो जो लोगों के लिए भी बेटर है और आपके लिए भी प्रॉफिटेबल हो सकता है. ऑलवेज इट ऑलवेज वर्क्स ऑन मे बी और मे नॉट बी. इट्स नॉट लाइक इट विल और इट मस्ट बी. देयर इज नथिंग कॉल्ड मस्ट बी इन दिस इकोसिस्टम एट लीस्ट, because you when you will be out competed you don't know even. So let's start with this only. So my name is Paritosh, and as Shivangi already told about me, so there is no need to share about this slide. I have around 5 years of working in this startup ecosystem. I am also a Startup India Marg mentor. If you will see the Startup India website, you will see something called MAARG. Uh, and on that, I am a registered mentor. I'm also at the guest faculty at Jamia Hamdard, ICAI. I take classes for the CAs in finance, and
Beside that, I also take classes at various IIMs for financials and strategy. So सबने टिंडर यूज किया है आज न कभी ना कभी. अगर यहाँ पे वो लोग बैठे हैं जो जेनजी हैं या फिर जो मेरे एज के हैं, ऑलमोस्ट सबने कभी ना कभी टिंडर बम्बल टाइप्स यूज करा है. इस तरह की जो वेबसाइट्स होती हैं, इनके जो फाउंडर्स होते हैं वो क्या सोचते हैं? What Sin Rad is telling us that when you are building a startup, it's difficult. Of course, it's difficult. अगर you have to give 100%. I say you will have to give 200%, and you will have to be committed full time. Starting up is not a part time thing. First thing first, सबको ये समझना चाहिए. काफी लोगों को ऐसा लगता है कि I will be doing a job and I will have a part time startup. When my startup will start growing, I will leave the job and join the full time. ये करना 99% केसेस में फेल करता है. और वो जो 1% लोग होते हैं, काफी ब्रॉड स्पेक्ट्रम पे काम करते हैं, दे कैन डू इट, बट 99% केसेस में ये फेल ही होता है. सॉल्विंग द प्रॉब्लम हैज टू बी पर्सनल और एल्स इज गोइंग टू बी डिसइंटीग्रेट. ये वही होता है, आपने अगर पार्ट टाइम स्टार्टअप स्टार्ट किया है और फुल टाइम आप जॉब भी कर रहे हैं, तो विद इन नो टाइम दोनों में से कोई एक चीज तो डिसइंटीग्रेट होने वाली है. So make sure if you have that broad working discipline, you can do it. Then only else you have to give 100%. So what is a startup? क्या होता है? और स्टार्टअप एक बिजनेस से डिफरेंट कैसे होता है? अगर अगर कोई बात करना चाहे तो कर सकता है इन बिटवीन भी, या फिर क्योंकि मेरे सामने स्क्रीन खुला हुआ है तो आई एम नॉट एबल टू सी व्हाट्स गोइंग ऑन, तो यू कैन टॉक. So startup refers to a company which are in the first stages of their operations. आइडिया जनरेट हो रहा है, रीडिफाइन हो रहा है, बार बार रीइटरेशंस हो रहे हैं, उसमें प्रोडक्ट्स चेंज हो रहे हैं, स्ट्रेटजी चेंज हो रही है, जहाँ पे वन और मोर startup founders, also known as entrepreneurs, who are developing or who want to develop a product for which they believe there is a demand. They believe it might be possible that there is no demand. There are various products in the market who is looking for the market. There are various products in the market who is looking for its customers. And there are various customers in this market for whom there are no product at all. So ये जो एक मिसमैच है, इस मिसमैच को कम करने के लिए, इस मिसमैच को नलीफाई करने के लिए जो स्टार्टअप फाउंडर्स होते हैं, दे थिंक दैट दे आर डेवलपिंग अ प्रोडक्ट जिसकी डिमांड है अभी मार्केट में. और वहां पे सिर्फ इनोवेशन एक की होता है. व्हाट हाउ मच इनोवेटिव यू कैन बी इन योर प्रोडक्ट, इन योर सर्विसेज, गिविंग द कंफर्ट टू योर कस्टमर्स in terms of product or even services. So if we see the differences between startup and business, the basic difference lies in the innovation. बिजनेस एक फैमिली बिजनेस भी होता है और वो बुरा नहीं होता है. बिजनेस इज वेरी गुड थिंग. स्टार्टअप से तो एटलीस्ट बेटर होता ही है इन टर्म्स ऑफ सेटलमेंट, इन टर्म्स ऑफ जो लिगेसी उसने देखी है एक फैमिली बिजनेस ने. काफी टाइम तक टाटा भी एक फैमिली बिजनेस था, काफी टाइम तक गोदरेज भी एक फैमिली बिजनेस था, और अभी भी है. टाटा, कभी देखा है कि किसी टाटा के वीपी को एज अ सार्क बैठा हुआ किसी सार्क टैंक में? पॉसिबल ही नहीं है, जबकि दे आर मेकिंग मोर मनी देन एनी सार्क्स एक्चुअली. सो इनोवेशन के टर्म्स पे बिजनेस एंड स्टार्टअप में ये डिफरेंस होता है कि एक बिजनेस ऑलरेडी एक सेट ऑफ पाथ, एक सेट ऑफ एसओपीज पे चल रहा है, एंड दैट विल बी गोइंग फॉरवर्ड ऑन दैट सेट रूल्स. वहां पे बहुत ज्यादा आप छेड़खानी नहीं कर सकते अपने रूल्स के साथ. बट इन अ स्टार्टअप दिस इज डिजाइन टू इनोवेट. जहां पे इनोवेशन होगा वहां पे चीजें ऊपर नीचे होंगी, क्योस होगा, एंड दैट क्योस माइट बी एबल टू डिस्टर्ब द मार्केट in one terms or two. So if you will see a scope, again
there is a limited scopes of progress because it has been set by the proprietor or set by the family who is looking after that business. स्टार्टअप कहीं भी पूरे टीम में किसी के पास भी कोई लिमिटेशन नहीं होती. Everyone is welcome to share the idea which will be in the favor of the startup to win the market share or the rate of growth. Growth happens in the business also, but जब जरूरत हो तब. If I am from business family और मेरा बिहार में या उड़ीसा में या वेस्ट बंगाल में एक फैक्ट्री है जहाँ पे मैं 50 लोगों को एम्प्लॉय करके रखा हुआ हूँ, दैट्स इट. वो मेरा एक ग्रोथ का अपर सर्किट है. अगर मुझे नेक्स्ट किसी और स्टेट में जा करके एक्सपैंड करना है तो आई विल keep looking and keep looking for the right time and the right opportunity when it will be necessary for me for the survival of the business. मैं जाके expand कर रहा हूँ. But in terms of a startup, it is focused on the highest way of growth, the fastest way of growth, and able to reproduce that success. हम उस मॉडल को कहीं और भी replicate कर सकते हैं. The replication of model is very much important. It's like Ola is an Indian Uber. Model is replicated. The idea is same, or if we can see the same thing in Swiggy and Zomato also. The idea has been replicated. Profit business जो फैमिली बिजनेसेस होते हैं या फिर जो पान का शॉप होता है वो भी बिजनेस है, बट क्या आप उसको स्टार्टअप बोल सकते हैं? वो उनका फोकस डे वन से अर्निंग पे होता है. स्टार्टअप का फोकस डे वन से टू क्रिएट द राइट प्रोडक्ट और द राइट सर्विसेज पे होता है. फिनांस, बहुत सारे फिनांसेस अवेलेबल होते हैं बिजनेस के लिए भी, स्टार्टअप के लिए भी. मोस्टली स्टार्टअप्स गो फॉर वीसी एंजल इन्वेस्टर्स जहाँ पे एक फिनेंशियल डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं लोग. ऑफ कोर्स बैंक लोन इज आल्सो मेंटेनिंग द फिनेंशियल डिसिप्लिन, बट अगेन देयर आर सो मच you can say people who have taken the loan and fled away. But again, in terms of a startup, investors are having the close view. Sometimes a person from the investor side is is on your board to check that how the financial health of the startup is going. टेक्नोलॉजीज, कोई स्पेशल टेक्नोलॉजीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती बिजनेस में, वहीं पे स्टार्टअप. अब तो सारे टेक स्टार्टअप्स ही आ रहे हैं. 90% ऑफ द स्टार्टअप्स आर टेक स्टार्टअप्स. लाइफ साइकिल 32% gets shut down in first 3 years. स्टार्टअप 92%. सो ये 32% और 92% कहाँ से आया फिगर? सो ये फिगर आता है आपके स्टार्टअप इंडिया के वेबसाइट्स वगैरह से भी, जो रिलायबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. एंड व्हाई इट इज बीइंग सो, व्हाई बिजनेस का फिगर इतना कम है और स्टार्टअप का ज्यादा है. अभी हम वो भी देखेंगे कि व्हाई 92% स्टार्टअप्स आर गेटिंग शट डाउन इन फर्स्ट 3 years. टीम, देयर इज नो नीड ऑफ हाई प्रोफाइल की आईआईटी से बंदा आया हुआ हो, आईएम से बंदा आया हुआ हो. दे जस्ट नीड अ पर्सन हु कैन सेल इट आउट. एक प्रोडक्ट आपके शॉप पे रखा हुआ है, कस्टमर आया, क्या आपने उस कस्टमर को प्रोडक्ट बेचा? हाँ तो ठीक, ना तो आप इस लायक नहीं है. सिंपल है. यहाँ पे फाउंडिंग टीम इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाती है स्टार्टअप पे, so that they can secure the fund, they can make themselves in the better position to make the investor convince that they can run a business because they have done their academics from good colleges. And exit फैमिली बिजनेस है, ऐसे ही लोग निकल जाते हैं या सेल इट आउट कर देते हैं. बट इन स्टार्टअप, मोस्ट ऑफ द स्टार्टअप्स व्हिच वी हैव सीन इन द पास्ट 5 to 10 years have gone to IPO, or the founders gets the exit after 10 to 15 years. So there are various stages of any startup, which every startup will go through. The ideation stage, mostly it comes in the first 1 to 2 years जब आप आइडिया एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और इट ऑल्सो हैपन्स बिफोर गेटिंग द कंपनी रजिस्टर्ड, बिफोर गेटिंग और स्टार्टअप रजिस्टर्ड. क्योंकि आपने स्टार्टअप जब रजिस्टर्ड करा है तो आपके पास एक ऑलरेडी आइडिया है. माइट भी आप उस आइडिया पे काम ना करें. लाइक सैमसंग वाज रजिस्टर्ड एज अ यूटेंसिल मेकिंग कंपनी,
सैमसंग कुकर बनाती थी, प्रेशर कुकर जिसमें राइस बनता है, बट आज वो मोबाइल फोन में बहुत बड़ा शेयर है। और सैमसंग इज द कंपनी हु इज मैनेजिंग द बुर्ज बुर्ज खलीफा। तो रियल एस्टेट में सैमसंग का बहुत बड़ा नाम है। तो यू विल हैव टू सी कि एक कंपनी किस आइडिया पे स्टार्ट हुई थी और आज क्या कर रही है। तो आइडिया जनरेट करते हैं लोग, एक्सप्लोर करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं बिटवीन द फाउंडर्स को फाउंडिंग टीम, और उसके बाद दे गो टू देयर मेंटर और दे redefine it, they refine it and come with a solid framework जहाँ पे they can say that this will be the product or this will be the service. On the paper itself, there is no prototype development yet. Everything is in the idea, but idea is solid and backed up by the logics which supports that this can be worked out. Product definition. यहाँ पे on this step we define that what will be our actual product and how the product will look like. We start creating the MVP, or we start creating the prototype of this. We define the core functionality of an app application. If we are into that sector, or if we are in the product making company, we define that what the product will actually do and how it will be different from the product which are in the market right now. In the prototyping phase, we do every kind of market research, physical, virtual, primary, secondary, whatever you say, सारे मार्केट रिसर्च करने के बाद वी कम अप विथ एन आइडिया कि हाँ, अब ये प्रोटोटाइप जो है, दिस प्रोटोटाइप कैन बी वर्कड एंड इट विल बी सर्कुलेटेड अमंग द पोटेंशियल कस्टमर्स। अब मैं आपको बताता हूँ अपने कंपनी का एग्जांपल लेकर के, हमारे स्टार्टअप का व्हाट वी हैव डन। द प्रोडक्ट वी हैव राइट नाउ, we have given to more than 1000 people to test it, and trust me, our first prototype was rejected by more than 700 people. We have the database of that 1000 people, naam, phone number, city, everything, rural, urban. We have tried to capture the entire population through that 1000 people. कुछ रूरल के हों, कुछ ऐसे जगह के हों जहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, कुछ ऐसे जगह के हों जहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, टू टेस्ट आवर प्रोडक्ट कि हमारा प्रोडक्ट बेस्ट सूटेबल कहाँ पे है, सो दैट वी कैन लॉन्च आवर प्रोडक्ट फर्स्ट इन दैट रीजन ओनली, है ना। एंड when we have been rejected by more than 70% of the potential customer, we thought that how we can refine our prototype, which comes in the table 4. We have detailed our product design. When we were starting it, we had no idea that in our product what are the technicals, know how, और ये काम कैसे करता है। ऑफ कोर्स एक तो बेसिक आइडिया होता ही है आपको, बट व्हेन यू गेट इनटू द टेक्निकल नो हाउ, as if if I talk about myself, I am not a sanitary pad user, I cannot be ever, बट मुझे जब ये 70% लोगों ने रिजेक्ट कर दिया हमारे प्रोडक्ट को, देन आई गॉट टू अंडरस्टैंड दैट देयर इज समथिंग विच कॉल्ड ग्लू, जो आपके कपड़े के साथ चिपकता है, और वो उसका भी उतना ही बड़ा रोल है जितना बड़ा रोल आपके मेंस्ट्रुअल ब्लड के एब्जॉर्बेंसी का है। देन वी थॉट व्हाट कैन बी डन ऑन दैट पार्ट। वी हैव created more than 22 prototypes yet, and now I think 22 or 23rd prototype is in the market, which have been the widely accepted by the customers now. तो ये 2022 प्रोटोटाइप के जर्नी को डिफाइन करना थर्ड एंड फोर्थ पिलर पे ही होता है, ये दोनों काम। and it needs a lot of hectic schedules, hectic work. You have to do it every time, send those products to new customers. अब आप एक पोटेंशियल कस्टमर को अपने 10 प्रोडक्ट भेज रहे हो और 10 का 10 प्रोडक्ट खराब है आपका, डू यू थिंक कि अगर आपका 11th प्रोडक्ट सही होगा तो दैट कस्टमर विल बाय? आई डोंट थिंक सो। उसके दिमाग में ऑलरेडी सेट हो चुका है कि नहीं भाई, आई एम हिज गिनी पिग,
और वो मेरे ऊपर टेस्टिंग ही कर रहा है, आई डोंट नो कि उसका ये प्रोडक्ट कितना सही होने वाला है। इफ यू विल गो एंड से इट, तो वैलिडेशन और टेस्टिंग जहाँ पे आप इंश्योर करते हो कि ये प्रोटोटाइप वर्क कर रहा है एज वी हैव प्लान्ड इट, and validating the product in the eyes of the customers, then you find, okay, this product is good to go now. We have to create the business plan, GTM, go to market strategy, and then you go for the commercialization. So let's talk about the startup ecosystem in India. Abhi right now, more than 2023 का डेटा अगर आप देखोगे तो DPIIT says more than 61,400 startups which are recognized by DPIIT, and few more than this which have not been recognized yet, but they are, as per the data of MCA, Ministry of Commerce and Industry. और अराउंड 12 to 15% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ इंडिया में हो रहा है सिर्फ स्टार्टअप्स के नंबर्स में। मोर देन 40,000 न्यू जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड एवरी ईयर। तो either you are a student, you are already into a startup, or you are thinking of doing a startup, this ecosystem is going bigger and you will find your place in this ecosystem for sure. So why startups fails? We seen that 92% of startups fail within 3 years. अब उस 92% को आप 100% अगर कंसिडर कर लोगे तो you will find that 37% startups fail because they ran out of money. And why they ran out of money? Because they have not spent their money so well and wisely. अभी startup ecosystem is like कि एक स्टार्टअप है तो दैट मस्ट बी इनटू बैंगलोर, गुड़गांव और दिल्ली और मुंबई, एंड दे मस्ट हैव अ एसी केबिन एंड द फाउंडर मस्ट सिट टुगेदर having a coffee वाला सिस्टम, एंड दे आर ब्रेनस्टॉर्मिंग ऑन इन दैट। जब भी हम लोग बात करते हैं ना कि स्टार्टअप का सेशन चल रहा है तो इट्स लाइक कि काफी हाई प्रोफाइल होगा। जरूरी नहीं है कि ऐसा ही हो और जरूरी नहीं है कि ऐसा ही होना चाहिए। When we started working, my co-founder, she is a microbiologist and author of 3 books on microbiology. She has developed our all products. She was sitting somewhere else. I was sitting somewhere else. And we both were deciding कि क्या करना है। तो ये भी होता है। So if you spend your money wisely in your first 2-3 years, you will survive this cause at least. 31%, 31% fails because no investor invests. No investor invests. Why? Uh, because they think the business is not investable as of now, or the business has no scope in the coming 5-10 years. No business plan model. बहुत सारे startups को I'm literally telling you, I've been with many co-founders yet, and they have no idea that how their business model is working और उनका business model है क्या। लॉस्ट फोकस, डिस्ट्रैक्शन, जॉब मिला, बहुत अच्छा जॉब मिला, चलो ठीक है भाई कर लेंगे इसको, इसको थोड़ा बैक बर्नर पे रखते हैं एंड विल डू इट लेटर अगेन। आउट कम्पीटेड, नो मार्केट नीड्स। ऐसे भी स्टार्टअप्स हैं, 20% है, आप समझिए आउट ऑफ 100%, 20% इज ए गुड नंबर। और ये ऐसे स्टार्टअप्स का नंबर है जिनके प्रोडक्ट्स की नीड ही नहीं है किसी को। प्राइसिंग इशूज, ये भी अराउंड 20% बनाता है। अब आपके प्रोडक्ट की प्राइसिंग कितनी होनी चाहिए, अगर आपने एक दो बारी में गिर के नहीं सीखी है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा मार्केट में compete करना और मार्केट में रहना। पुअर मार्केटिंग, इफ पीपल आर नॉट नोइंग अबाउट योर प्रोडक्ट, अगेन इट विल फेल। might be you have developed the super product, but if you are not able to market it, you will be failure to pivot. Now just think about Samsung. If they will be making the pressure cooker till date, would you be knowing about it?
कि सैमसंग जैसी कोई कंपनी है वो प्रेशर कुकर बनाती है, अगर वो पिवट नहीं करते टाइमली, उन्होंने प्रोडक्ट चेंज नहीं करा होता या बिजनेस मॉडल चेंज नहीं करा होता, आपको पता होता क्या कि सैमसंग क्या है? या फिर जो लोग टेक बेस्ड कोई ऐप वगैरह डेवलप कर रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है पुअर यूजर इंटरफेस, या जो उनका स्क्रीन जो कस्टमर्स के लिए मैटर करता है वो अगर बहुत अच्छा नहीं है, तो दैट ऑल्सो being a cause of a startup which gets failure. So these are the stages of a startup. So we have already discussed it. In the first 6 months to 1 year, what we do research, talk to the customers, idea generation, solution hypothesis. A small team होती है, ये वो टाइम होता है जब आप इंक्यूबेट होते हो कहीं पे। हमारे पूरे के पूरे वैल्यू चेन में, स्टार्टअप इकोसिस्टम में इंक्यूबेशन का एक बहुत बड़ा रोल है। What are the role of incubators? We will see in the later slides. We are incubated at Sri Sri University in Odisha. I am Ahmedabad CIIE in Gujarat. So what support they are giving to us? ये वो टाइम होता है जब आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपकी हेल्प करते हैं, बिकॉज उस टाइम आपके आइडिया पे किसी को भरोसा ही नहीं होता है। अगर आपका आइडिया कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है, एज ऑफ नाउ अर्ली स्टेज पे टीम डेवलपमेंट होती है, वी सीक फॉर द फंड्स, इंक्यूबेशन सपोर्ट्स उस टाइम मिलता है। आप उस टाइम लीगल एंड एथिकल कॉम्प्लायंसेस कंप्लीट कर रहे होते हो। ग्रोथ स्टेज में आप अर्ली ट्रैक्शन, आपने रेवेन्यू बनाना स्टार्ट कर दिया है। एक्सपेंशन के टाइम में इन्वेस्टर्स का रोल आ जाता है, सीरीज भी फंडिंग्स आने लग जाती है। और फिर एग्जिट 8 to 10 years के बाद मोस्ट ऑफ द फाउंडर्स गेट एग्जिट फ्रॉम दैट स्टार्टअप्स, और द VCs get exit from that startups by through IPO, or the founders exit, or the dividend payback that startups are able to pay that. So we'll see a legal compliances of a startups. एक startup के लिए क्या जरूरी है? So either you are, if you are planning to start a startup in India, then you will have to either go with the private limited OPC. सबको पता है ये सब, LLP, LLC. LLP is just a refined version of private limited, or the public limited or Section 8 company. Public limited you cannot start, that is only for government. The business licenses, जिसमें आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, GST, और जो बाकी के लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं, दैट मस्ट बी ऑन द प्लेस फ्रॉम द डे वन when your company get registered. These 4 5 things must be on the place. Taxation and accounting laws, depending upon the nature of the business, what business you are in. Like we are in the production of sanitary pad, let's say, then we have to give GST on few of our products, because if you see the value chain of sanitary pad manufacturing or production, then you will find there are various kind of suppliers. Those suppliers who are selling us like the top seat or the gum, because we are using the honeybee's wax. So those who are providing us the honeybee's wax, they are taking GST from us. But those who are giving us the absorbent or the fiber or the banana fiber or the bamboo fiber, that is out of GST, the GST exempted products. So on that again, we do not need to give any kind of GST. So based on the nature of business, on what part you are giving it and on what not, that will be defined. Again, company law based compliances, that in which kind of business you are. Are you in trading or are you in manufacturing? If you are in manufacturing and if you own any kind of factory, then you must have ISO 9001 or the good manufacturing practices certificate. If you are into the food or something which is wearable or direct in the direct touch of your body, then it must be FDA approved. Or again, if you are in the food, then FSSAI or the Global Gap. If you are in the farming business, then you must have a Global Gap certificate. CE or the ROHS labor laws. If you are having an estate or factory where more than 50 or 51 laborers every day are employed, then you must follow the labor laws of India. Again, IPR, product management, and how to sell off the business. So we'll see.
अब वी कैन सी एवरी ऑफ दिस द बिजनेस एंटिटी सेटअप कि क्या फर्क होता है प्रोप्राइटरशिप में और प्राइवेट लिमिटेड में। वो जो आपके घर के बाहर या आपके मार्केट में गोलगप्पा वाला है, वो भी एक बिजनेस ओनर है, और उसका भी रोल है इस कंपनी, इस पूरे इंडिया के, जो हम बोलते हैं ना कि 3x और 5x हम बढ़ा रहे हैं अपना जीडीपी, और ये उस सारे जीडीपी में आपके गोलगप्पे वाले का भी उतना ही हाथ है। बट देर इज नो फॉर्मल रजिस्ट्रेशन, कोई गोलगप्पा की ओपीसी नहीं खोला है वो, और उसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है। वो आज यहाँ पे है, कल वो किसी दूसरे चौक पे काम कर रहा होगा। वहां पे एक पर्सन हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दैट इज नॉट ट्रांसफरेबल। टैक्सेशन यहाँ पे ऑन द बेस ऑफ द इंडिविजुअल होता है, not on the base of company, because in Hindu undivided family, or as per the Indian taxation system, a company is a virtual person. So if you have a private limited, then you will be treated as the another person, and your company will be treated as the another person. So, but in here in proprietorship, the both are the same and taxed as one individual based on the total income of the that person who is owning that business. There is no need of annual meetings, annual filings. There is no foreigners allowed to sell Golgappa in India, at least. Partnership. It's like दो लोग मिले और दोनों बिजनेस माइंडेड पीपल हैं, दे थॉट कि चलो एक दुकान डालते हैं, दुकान मस्ट बी ऑफ ग्रोसरी और एनीथिंग लाइक दैट। तो दे बोथ स्टार्टेड इट बाय गिविंग 50,000 ईच, और 1 लाख में उन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया। देयर ऑल्सो रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, minimum of 2% required to start a partnership. If they register this, the same format will be turned into LLP, limited liability partnership. And again, there is no requirement of annual filings or anything like that. Taxation, यहाँ पे taxation की पॉलिसी चेंज हो जाती है, जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर पार्टनरशिप प्रॉफिट के बेस्ड पे होता है, दैट हाउ मच प्रॉफिट which person is getting out of the whole. So the most sought format of startup is private limited as of now. That has to be registered with MCA and under the Company Act, and it is a separate legal entity. The promoters, I am one of the director of my startup, but I have not any personal liability towards the company. I can go and do a job, but again that company will have to justify why I am doing this. Member liability, there is limited liability of extent of the share capital. Like if I am owning 50% or 60% or 30%, I am liable for that much capital of the company only. So taxation is different way of taxation is here. Again, board and general meeting must be conducted periodically, and it must be filed to the MCA. These things will be taken care by your CA or the person who is looking after your uh, financials part. So these are few incorporation document. I am showing the incorporation document of our company only, our startup only. So this is the certificate of incorporation, which says I hereby certify that Vatsalya Wellness Private Limited is incorporated on this, और CIN नंबर ये है, परमानेंट अकाउंट नंबर ये है, टैक्स एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर ये है. These things are given by the government. Again, the GST, if you are registered under Startup India, then you will get an certificate number, DIPP. This is the PAN card. These are few business licenses of our company, because if I claim that our product are biodegradable, then again it must be approved by any NABL laboratory which has the right to issue the certificate of biodegradability. Like अब biodegradable भी है तो कैसे है, what is the pH, what is the disposability. These things are very much required when you conduct any kind of
you know, like right now from the past 2 3 days in our factory, there is an audit going on for our ISO 45000. So these all things will be needed that time to check if the product is liable, is up to the mark or not. What is the hygiene certificate of the product? What is the physical analysis of the product? Every kit and kin which will be helping your product to sell out, or which will be helping your product to make it up to the mark, you must get those licenses. Like if I say that my factory is ISO 9001 certified or 10002 certified, I take care of my customers. This is the customer satisfaction complaint handling. Then I will have to again write an SOP that how I satisfy my customer. If any complaints comes through, what are the channels from a customer through any customer can complain, raise a complaint for our product. If I have 4 or 5 product, which product will be uh, treated as what need of? Again, environmental management system. If I am having a factory and fumes are getting out, how I am planning to clean the environment out of that. So these are the ISO certificate. This is the FDA, Food and Drug Administration. What are the good manufacturing practices I am doing that? If you see, there is something called written. This is certified that quality management system of Axel Wellness Private Limited for the following scope. These are the following scope. That's it. आप इसके अलावा कुछ और नहीं कर सकते. If you have the organic certification, then organic certification only for production of sanitary pads or the manufacturing of sanitary pads. If we are also selling the pads vending machine, or we are also making the pads vending machine, we'll have to get the another license for which the audit is going on actually. So what is the role of taxation and accounting? So I assume that everyone has a bit idea of how taxation is being worked in India. दो तरह के टैक्सेस होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स वो है जो आप अपने सैलरी पे देते हैं या आप अपने बिजनेस पे देते हैं, इनकम टैक्स गवर्नमेंट को. इनडायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं जिसमें जीएसटी आता है, एक्साइज आता है, कस्टम आता है. हर प्रोडक्ट जो आप खरीदते हैं जो किसी ब्रांड का है, उस प्रोडक्ट के लिए आप जीएसटी पे करते हैं अपने शॉपकीपर को. So depending upon again the nature and business operations, the taxes are being imposed in India on the startups or on the business. But if you are registered under DPIIT, then you get 3 year tax holiday. Means आपको first 3 years तक tax देने की कोई जरूरत नहीं है if your annual turnover is not exceeding 100 crores. या फिर exemption from tax from LTCG if your turnover is not exceeding 50 crores, or tax exemption for individual or Hindu undivided family HUF if you purchase equity of any DPIIT startup. Let's say uh, I am a startup India Mark mentor and I am mentoring 13 startups as of now. So if I think एक startup बहुत अच्छा करने वाला है and I see the scope, और मैंने उसके 10% equity खरीद ली, then I become the investor for that startup and I will get tax exemption on that money because I belong to the HUF. Any business whose turnover exceeds 40 lakhs needs to be registered under GST. अगर आप आइडिया स्टेज पे हैं या प्रोटोटाइपिंग स्टेज पे हैं, you don't need to get registered under GST. आप जब आपका प्रोडक्ट या सर्विसेज रेडी हो जाता है और प्रोडक्ट या सर्विस आप बेच रहे हैं कमर्शियल लेवल पे, then you must have it. The company law based compliances जिसमें आपकी एनुअल जनरल मीटिंग, बोर्ड मीटिंग, ऑडिटर अपॉइंटमेंट, कंपनी जिस दिन पे जिस डे पे इनकॉर्पोरेट हुई है एमसीए के सर्टिफिकेट में, उस डेट के 30 डेज के अंदर आपको एक ऑडिटर रखना होता है. दीज थिंग्स आर मस्ट हैव. You cannot skip these things. If anyone who has started it, your CA must created a document called auditor's appointment. You must have signed it. So compliances under IPR. So if we talk about a startup, we are talking about innovation. So if there
is an innovation, there must be a various ways, some way to protect that innovation. मैंने हमारी स्टार्टअप ने एक इनोवेशन किया, लेट्स से मेरी जो को फाउंडर है मैडम ने एक वी हैव एक्चुअली 5-6 पेटेंट्स एज ऑफ नाउ, बट जो वन ऑफ द मेन इनोवेशन है हमारे स्टार्टअप का, दैट इज वी हैव created a chip, and that chip is being installed inside every sanitary pad. Now, this is called the future of menstruation management, I can say. And what it does, that chip emits oxygen ions into the vaginal area of the wearer to balance the vaginal pH, to test about various things. आप अपने सैनिटरी पैड को सैनिटरी पैड को देके समझ सकते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम आपको हो सकता है विद द हेल्प ऑफ वेजाइनल फ्लूइड. तो अब हमें वो चीज प्रोटेक्ट करना है. हम नहीं चाहते कि कोई और स्टार्टअप आए और ये आइडिया पे काम करे. हाउ टू डू दैट? व्हाट आर द IPR? So in this way, the IP rights play crucial role, and it becomes the secret sauce of the startup. Like Coca-Cola. Coca-Cola की secret recipe सिर्फ आज भी 2 लोगों को पता है, और ये एक लोग का डेथ हो जाएगा तो किसी दूसरे को पता चलेगा. So you have to understand that how these things are being guarded, being. So there is a scheme from even a Startup India that is called Startup Intellectual Property Protection (SIPP), which is also comes under the Startup India initiative. You can also file your all the documents you can upload, and they will do the rest of the things. They will consult. They will connect you with any patent attorney, and that your idea will be protected. So what are contractual obligations? If you are sending your, let's say, मेरे पास एक idea है and I'm telling you ground breaking idea हो सकता है menstruation में और इस तरह के पूरे इंडस्ट्री में, और मैं उस PPT को किसी इन्वेस्टर को भेज रहा हूँ. अब इन्वेस्टर को तो पता चल गया ना ये लोग क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं. तो इन्वेस्टर ने पूछा कि हाउ दैट चिप इज बीइंग फॉर्म, उस चिप में क्या क्या डाला है, वो चिप कैसे काम करता है, और मैं उस चिप का वर्किंग वे बता रहा हूँ अगर किसी भी अपने इन्वेस्टर को या स्टेक होल्डर को. अगेन देयर मस्ट बी एन NDA साइंड बिटवीन द स्टार्टअप एंड दैट इन्वेस्टर्स, that these things which comes through your email ID or this very document will be non-disclosure signed by both the parties. ये मेरे और आपके अलावा किसी को और को पता नहीं चलेगी. We will not be disclosing it to anybody else. Again, that will be done with the employee agreement. स्टार्टिंग में क्या होता है कि we hire various people. तुम भी आ जाओ, और हम पे करने लायक ही नहीं होते. Again, if you are planning to dilute your equity with someone, you will have to write it in the form of document, sign it, give it to that person, and take the note that he or she has been accepted it. Again, with your stakeholders in the value chain, suppliers, buyers, co-founders. So winding up, coming to the last part of the journey, closing a company, of course, it is a difficult call for any startup guy, a startup founder. But if you decided कि चलो अब हम ये स्टार्टअप बंद करते हैं, अब हम कोई दूसरा स्टार्टअप करेंगे, that must be in the another sector, another industry, and that operations, that business cannot be done from the current startup, then you will have to open another one. और इस प्रोसेस में आपको फर्स्ट स्टार्टअप बंद कर देना चाहिए ऑलवेज. इफ यू आर co-founder at 2 or 3 startups, and if anyone is not working, wind it down. There is no problem. So from legal standpoint, or Startup India is giving 3 way of shut down any startup. Fast track exit mode, you can submit your documents to the MCA and you say it कि जो भी प्रॉब्लम है आप उनको बताइए, and you exit it through, or the voluntary closure.
if you don't want to shut down the company, if you want to keep the company startup on the back burner, अभी मैं काम नहीं कर रहा हूँ, तो 6 महीने, 1 साल के बाद I will again restart it, then you can also apply for the dormant company. Your company will be considered as dormant. There will be no tax, nothing. There will be no sales, no revenue, no खर्चा, कुछ भी नहीं होगा उसमें. बट कंपनी जस्ट विल बी अलाइव, जिंदा रहेगी. और कोई भी कंपनी अगर 5 ईयर से ज्यादा डॉर्मेंट फेज में होती है तो इट इज कंसिडर्ड एज कि कंपनी ऑलरेडी इट हैज बीन वाइंडेड अप, और ये आरओसी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ऑफिस से स्ट्राइक ऑफ हो जाता है. सो ये सारी चीजें तो हो गई. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज फंडिंग. जब आप सीड फेज पे होते हैं, आइडिया फेज पे होते हैं, you must go with the grants of a Startup India Seed Fund Scheme, MSME Hackathon, state-wise funding support like a Startup Odisha, Start in UP, a Startup Maharashtra, a Startup Delhi. ये जो स्टेट वाइज स्टार्टअप बॉडीज हैं गवर्नमेंट की, दे ऑल्सो हेल्प्स अ लॉट. DST, EIR, थीम बेस्ड फंडिंग. काफी टाइम आपने सुना होगा कि क्लाइमेट चेंज में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं, someone or some agency is calling them, only them, or sometimes you must have heard that who are into the sanitation or women-led startups are being called by any organization for the grant or the support. So that is called theme-based funding. Startup India Seed Fund Scheme, we have received. MSME, we have received. State-wise funding support, we have received. Again, ये ग्रांट्स है. ग्रांट्स का मतलब यू डोंट हैव टू पे इट इन एनी फॉर्म, either equity or the money. You don't have to pay it back, but you will have to show that where the money has gone, what are the things you have achieved through that money to these agencies. Like a Startup India Seed Fund Scheme, the Startup India gives you the money in the form of grant, or you will have to give them all the reports. Then comes CD or CCD, कन्वर्टेबल डिवेंचर्स, कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. इसमें क्या होता है, इसमें दो तरीके से पैसे आते हैं. लेट्स से स्टार्टअप इंडिया में आपने सीसीडी में अप्लाई करा और आपका 20 लाख का सैंक्शन हो गया प्रोजेक्ट. नाउ स्टार्टअप इंडिया विल गिव यू 20 lakhs फॉर अ सर्टेन टाइम लिमिट, लेट्स से 3 years और 5 years. आफ्टर 5 years आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन रहेगी, अभी आपकी कंपनी की जो वैल्यूएशन है उसके रेशियो में 20 लाख का वैल्यूएशन उस टाइम क्या रहेगा, उस रेशियो के हिसाब से कितने % इक्विटी बनती है, वो इक्विटी स्टार्टअप इंडिया विल टेक फ्रॉम यू. दैट विल बी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स या फिर कंपल्सरी कन्वर्टेबल डिवेंचर्स. एनी काइंड ऑफ डिवेंचर विल बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी. यहाँ पे स्टेट वाइज जो फंडिंग सपोर्ट है वो भी काम करते हैं. एनआरडीसी है, नेशनल रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. वी हैव बीन फंडेड बाय एनआरडीसी टू. अगेन फिक्की फ्लो, वी हैव बीन फंडेड बाय फिक्की फ्लो टू. तो इसमें से ये सारे जितने भी हैं वो मैंने अपने एक्सपीरियंस से ही लिखा है कि जहां से हमें फंडिंग मिली है आज तक. तो एनआरडीसी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड करता है. स्टार्टअप इंडिया किसी भी आइडिया को मार्केट तक ले जाने के लिए फंड करता है. डीएसटी साइंस रिलेटेड प्रोजेक्ट, टेक रिलेटेड प्रोजेक्ट को फंड करता है. थीम बेस्ड फंडिंग विल बी डन बाय वेरियस काइंड ऑफ एजेंसीज हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इट. डेट गवर्नमेंट भी दे रही है, डिफरेंट एजेंसीज भी दे रही है, प्राइवेट एंजल्स भी दे रहे हैं, साक्स भी दे रहे हैं, वो सब एंजल्स हैं बेसिकली. और जब ये सारी चीजों से आप आगे आ जाते हो, ग्रांट्स मेनली आपके सीड के टाइम पे होता है, सीसीडी आपके ग्रोथ फेज तक होता है. जब आप ग्रोथ फेज से भी आगे निकल जाते हो, देन डेट एंड इक्विटी कम्स इनटू द सीन. नाउ यू आर एबल टू डाइल्यूट योर इक्विटी. अभी जब आप सीड फेज में थे या प्रोटोटाइप डेवलप कर रहे थे, देन यू वेर नॉट इन एबल टू डाइल्यूट योर इक्विटी एटलीस्ट. मुझे नहीं लगता है कि किसी भी फाउंडर को, वो व्हाट आई फील पर्सनली, कि जब तक वो रेवेन्यू
अच्छा खासा रेवेन्यू ना बना लिया हो, उसको अपनी इक्विटी डाइल्यूट करनी ही नहीं चाहिए, नो मैटर व्हाट, नो मैटर हु इज कमिंग ऑन द बोर्ड, until unless he or she feels कि ये एक बहुत बड़ा यूनिकॉर्न बनने वाला है, so that if he or she will be left with 1% of the equity of the company, he or she will be the millionaire. So ethical compliances, ये सब बातें तो हुई जो आपके लीगल के थ्रू जाएंगी या फिर फिनेंशियल्स के थ्रू जाएंगी। अगर आप इस न्यूज को देखेंगे अभी भी जा करके, यू विल फाइंड भारत पे का न्यूज है ये बेसिकली। और भारत पे अभी जो रिसेंट जितने भी प्रॉब्लम्स हुए हैं या फिर बायजूस बायजूस भी अभी एक बहुत रिसेंट न्यूज में रहा है। सो व्हाई बायजूस इज फॉलिंग, व्हाट आर द एथिकल या फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स which are not being followed. If you will see the case study of these companies, you will find somewhere the founders have not followed the code of conduct of ethics or the ethical way. They have taken some non-ethical ways at some point or the other. So legal issues होते हैं, legal issues, we'll see all the legal issues, advertisement and marketing, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जोनल लॉज, डेटा प्रोटेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। लीगल इश्यूज अगर इफ यू सी देन इफ यू आर हैविंग 40 lakhs plus revenue and you are not filing for GST, then you are actually doing the tax evasion, आप टैक्स की चोरी कर रहे हैं। then again will be some point at the other it will be come into the scene, because if money is coming into your bank account and that bank account is connected with your company, again you will have to face the legal battle. Industry based licenses, if you are working into a different set of industries, like let's say फूड इंडस्ट्रीज, आप फूड्स एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर आप फ्रोजन वेजिटेबल्स बना रहे हो, देन यू हैव टू टेक different kind of licenses. If you are making utensils, then you will have to take the different kind of licenses. The legal documentation must be in the place. The उद्योग आधार अभी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक बहुत सारे स्टार्टअप फाउंडर्स के लिए हुआ। दे हैव नॉट फाइल्ड अबाउट इट, सो उद्योग आधार मस्ट बी ऑन द डेस्क ऑलवेज एट लीस्ट। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, रात के 10 बजे के पहले, दिन के 10 बजे से रात के 10 बजे तक टीवी पे कॉन्ट्रासेप्टिव का एड्स नहीं आ सकता। दिस इज वन ऑफ द लॉ, इफ यू डोंट नो, बट आता है। एडवर्टीजमेंट एंड मार्केटिंग, टोबैको प्रोहिबिशन एक्ट, जब भी आप टोबैको का ऐड कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू राइट अ डिस्क्लेमर कि ये टोबैको से क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। और ये कौन करता है? द फूड एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट, इंडियन मेडिकल काउंसिल रेगुलेशन। जैसे कोरोनिल के बारे में प्रॉब्लम्स हुई थी, इफ रिमेम्बर, जब कोरोनिल दवा बाबा रामदेव ने लॉन्च करी थी और उसको बोला था कि कोरोना ठीक हो जाएगा, that was the false advertisement, that was the false marketing of it. अल्कोहल का एड आप नहीं दिखा सकते। इफ यू रिमेम्बर, अभी भी आता है ना, मेन विल बी मेन, इंपीरियल ब्लू, ये एड किस चीज का है? वाटर का तो नहीं है। या फिर किंगफिशर का जो सोडा आता है, किंगफिशर के सोडा का एड आता है, यू नो इट वेरी वेल कि ये एड किस चीज का है, बट एडवर्टीजमेंट में दे कैन नॉट शो द अल्कोहल, so they are showing the bottled water or soda water or something like that, या फिर तनिष्क या फिर मिंत्रा या फिर नेस्ले का अगर आप ऐड देखोगे तो मैगी का ऐड देखोगे तो these are all the false advertisement. आप गन्स का ऐड नहीं कर सकते किसी भी टीवी पे, किसी भी चैनल पे। अब ये जोनल लॉज है कुछ कि यू मस्ट नॉट हैव अ वाइनरी इन बिहार एंड गुजरात because these states are prohibited the production of wine or the any alcoholic drink. या फिर कमर्शियल यूज ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, स्कूल, हॉस्पिटल, आप किसी स्कूल, आप किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के
300 या 250 मीटर्स के पूरे रेडियस में देयर मस्ट नॉट बी एनी टोबैको शॉप. So again, it is an infrastructure related zonal laws, data protection and private privacy issues. In the digital world, privacy is a myth. सिंपल सी बात है भाई. अगर आप अभी गूगल पे कुछ सर्च कर रहे हो या फिर आप फ्लिपकार्ट पे कुछ सर्च कर रहे हो और आपने कुछ देर के बाद देखा अपने फोन में तो उसी चीज का एड्स आ रहा है आपके इंस्टाग्राम पे, तो डेटा कहाँ तक प्राइवेट है, आपका डेटा कहाँ तक प्रोटेक्टेड है. व्हाट यू आर सर्चिंग इज बीइंग ट्रैक्ड. व्हाट यू आर टॉकिंग इनटू द फैमिली, इट इज बीइंग ट्रैक्ड. What you are talking to someone on the phone, it is being tracked. So again, if these things are being tracked, then how these things are being used and for what these things are being used. For this there is a law, और उस लॉ को फॉलो करना एवरी टेक कंपनीज या फिर वो कंपनी जो इस पूरे चेन सिस्टम में है उनको फॉलो करना होता है. एथिकल इशूज आपके बहुत सारे ड्यूटीज होते हैं टुवर्ड द कस्टमर, टुवर्ड द एम्प्लॉयज. आज भी मुझे याद है जो हमारे फर्स्ट, टू बी ऑनेस्ट, हमने अपना पहला प्रोडक्ट IIM अहमदाबाद में लॉन्च करा था और मैंने अपने बैच के लड़कियों को दिया था वो टेस्ट करने के लिए, और सबने मिलके गाली दिया, सबने अकेले अकेले में भी गाली दिया, फिर सबने मिलके भी गाली दिया. और आज वही कस्टमर्स हैं हमारे, और काफी अच्छे कस्टमर्स हैं हमारे. दे आर दे आर आवर वर्ड ऑफ माउथ कस्टमर्स जो कि डिफरेंट लोगों को भी हमारे प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं. सो ड्यूटी टुवर्ड्स द एम्प्लॉय, अगर मैं उनके साथ उस डे पे र्यूड हो गया होता तो फिर शायद वो आज हमारे कस्टमर्स नहीं होते. आई थिंक सो. These are few ethical issues. While earning profit, ethics must not be ignored towards our employees, toward the environment, toward the startup. Deceptive and inappropriate remarks नहीं यूज करने चाहिए आपको कभी भी. So these things are there. If you remember, ringing bells करके कंपनी थी, शायद इसमें से अभी तो जो लोग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे उनको नहीं पता होगा, बट देयर वाज अ कंपनी विच केम एंड उन्होंने एड चलाया था दैट दे विल बी गिविंग द मोबाइल फोन एट 251 रुपीज. 251 रुपए में वो मोबाइल फोन दे रहे थे जिनका रैम 4 GB और समथिंग लाइक दैट. दे हैव गिवन द टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ दैट मोबाइल फोन, और बड़े बड़े एड्स आते थे उसके उस टाइम. आई रिमेम्बर. और मेरे फैमिली से भी कुछ लोगों ने उसको पैसे दिए थे और फोन कभी आया नहीं, और वो बंदे को फाइनली जेल हुई 3-4 साल के बाद, क्योंकि विद इन 2 और 3 days इतना ज्यादा रस हुआ उसके वेबसाइट पे दैट उसका सर्वर डाउन हो गया था बेसिकली. तो ये सब पूरा फ्रॉड था ये. दे वर नॉट क्रिएटिंग एनी फोन. This all was the false deceptive kind of thing. So if you are in coming into a startup, or you are in the startup, or you are a student going to work in a startup, check these things before getting in this ecosystem at least. So as of now, this is it. You can connect me on my LinkedIn, on my phone, and let me know if any kind of questions do you have. Yes, sir. We have couple of questions in the chat box. So I would like to have answers from you. So मैं start करती हूँ sir. आप अपने answers देना फिर. जी. ठीक है. So sir, first question is from Whiteboard Foundation itself, and they're asking ki, how do you manage finances and budgeting for your startup, and what advice do you have for other entrepreneurs who are looking for the capital? See, as I said earlier, I take classes on finance for the various colleges. So of course there is a CA in our startup also, but
बहुत सारी चीजें मैं खुद भी मैनेज करता हूँ। व्हेन आई गेट टाइम आई डू द फाइनेंशियल पार्ट एंड आई ऑलवेज इनकरेज स्टार्टअप फाउंडर्स टू अंडरस्टैंड इट। कभी कभी होता क्या है ना कि सीए ने कुछ करा एंड सीए डिड इट, स्टार्टअप फाउंडर्स को पता चलता है 6 महीने के बाद व्हाट सीए डिड इट इन द बैक, है ना। और इसके कॉन्सिक्वेंसेज उस स्टार्टअप एंड स्टार्टअप फाउंडर्स को भुगतने पड़ते हैं। They Right. have to face the consequences. So Mhm. always sit with your CA, understand it what he or she is doing, और उसके बाद ही आप अलाउ करो उसको ये करने के लिए कुछ भी। Mhm. और if you are looking to raise capital, connect with the right kind of person. Uh, check in which category you fall as of now. If you are making revenue, do connect with me. I will connect you few of the incubators who have the funds. Okay, So that's great to know. they may help you. Okay, thank you so much. And another question, sir, we have is how do you stay motivated? Like abhi bhi aap factory mein ho and still you are taking this webinar. So इतनी सारी motivation and dedication कैसे आती है? सिंपल सा फंडा है। मैं डेली अपने आप से क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि जॉब वॉब छोड़ के ये क्यों स्टार्ट करा था, हाँ, वाई यू स्टार्टेड ऑल दीज। यू हैव टू गो गो आपको चलना पड़ेगा, यू कैन नॉट हैव एनी ऑप्शन। सी मोटिवेशन वगैरह, ऑफ कोर्स वी डू गेट सेटबैक्स, वी डू गेट फेलियर्स, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द एंटरप्रेन्योरल जर्नी। यू हैव टू बी सेल्फ मोटिवेटेड। आपको उठाने के लिए कोई आएगा नहीं। आप 2 बजे रात में आपकी नींद खुलती है और फिर नींद ही नहीं आती है ना। तो yes, ये एक right. बहुत हेक्टिक और बहुत गंदा सा प्रेशर होता है, हमेशा की स्ट्रेसफुल लाइफ होती है आपके पास। अभी तो फिलहाल रेवेन्यू आना शुरू हो गया, वो टाइम जब रेवेन्यू नहीं आता है और आपके सिर्फ पैसे खर्च हो रहे होते हैं और आपके पास कुछ आइडिया भी नहीं होता है कि रेवेन्यू कब आएगा, वो तो इससे भी ज्यादा बुरा होता है। जो स्टार्टिंग के फर्स्ट 2-3 इयर्स Right. बर्नआउट हमेशा होता है। हाउ मच मनी यू आर बर्निंग एवरी मंथ, इट मस्ट नॉट बी टू मच। आप इसको एनी हाउ 25 से 30,000 के बीच में रखो। आकाश Mhm. अगर इससे ज्यादा गया वो तो फिर आपके पास रनवे नहीं होगा काम करने का। ऑलवेज कीप द रनवे ऑफ 6 मंथ्स एट लीस्ट, Mm. सो दैट Right, 3 महीने तो आप काम कर ही सकते हो। right. That's really good suggestion to all the entrepreneurs. And so how do you prioritize, and manage your task and responsibilities? So as a entrepreneur, you must be getting multiple tasks at a time. So how do you prioritize everything देयर and वाज be अ टाइम productive? There was a time when my co-founder and I, two people, were working towards our all the activities. और मुझे याद है कि my co-founder is a woman and she वो कैनवा पे रील्स भी बनाती थी। शी इज अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट। और क्योंकि हम जिस सेक्टर में हैं तो सारी कस्टमर्स हमारी लड़कियां हैं और वो इंस्टाग्राम पे हैं, तो इंस्टाग्राम के लिए रील्स बनाना है और फिर जा करके हमारे सैनिटरी पैड पे रिसर्च भी करना है। तो दो अलग तरीके का काम एक Yes. ही इंसान कर रहा है, Hmm. तो आपको प्रायोरिटी दोनों को देनी होगी। आपको ये काम को छोड़ नहीं सकते कि नहीं ये मेरा काम नहीं है। तो आप प्रायोरिटी दीजिए अपने काम को 2-3 तरीकों से। या तो मैं अभी भी डायरी डायरी लिखता हूँ डेली, तो आप वो कर सकते हैं। एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा तरीका है। मोबाइल पे मेरे को ज्यादा भरोसा होता नहीं है वो सब पे। एनी डॉट डू पे गो कन्वेंशनल, आप लिखो क्या काम करना है आज और उसको कंप्लीट करो और इवनिंग में एक बार रीचेक मार लो कि क्या काम बचा हुआ रह गया। विद इन 30 डेज आप थोड़ा सा बेटर प्रायोरिटाइजेशन वाले मोड में आ जाएंगे। Right. That's very good suggestion, I must say. Sir, another question we have is from Ankit, and he's asking, sir, how do you manage, how do you approach marketing and branding of your startup? Like we have seen you are collaborating with TCS also for your, I guess, vending machines and all. So how are you managing everything? What strategies you are using for, branding and promotion?
two, three things are there. Whom you are focused to basically. If you are into B2B, if you are into B2C, or you are into both. Like for B2C, if I would say we have more than 200 interns who are working in different girls' colleges, universities, counting into IIM, QIMs, यहाँ पे भुवनेश्वर में और कटक के अराउंड जितनी भी कम यूनिवर्सिटीज हैं या फिर टेक कंपनीज हैं यहाँ पे, तो मिला करके सारे इंटर्न्स मिला करके हमारे पास मोर देन 200 हैं। और ये एम्बेसडर्स क्या करते हैं, दे आर बीइंग द फेस ऑफ द कंपनी, दे आर बीइंग द वॉइस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन इन देयर ओन सेटअप। अगर कोई लेट्स से बिरला ग्लोबल यूनिवर्सिटी है यहाँ पे, दे आर 7 or 8 एम्बेसडर्स आर देयर, तो दे आर वन ऑफ द पर्सन। और वहां पे हमारे कस्टमर्स हैं। हमने एक बहुत अच्छा ब्रांडिंग का तरीका ये किया कि जहाँ पे कस्टमर्स हैं वहां पे प्रोडक्ट्स रख दो। हम्म, सारे गर्ल्स हॉस्टल में ले जाके प्रोडक्ट्स रख दो। okay. इधर सी वी आर नॉट इन द प्लेस टू compete with whisper or stay free। बहुत क्लियर है। वी मस्ट नो अबाउट आवर सिचुएशन, वी मस्ट अंडरस्टैंड कि हम कहाँ पे लाई कर रहे हैं अभी, सो दैट वी कैन फिगर आउट द बेस्ट वे। तो हमारे पास एक ही तरीका है, कस्टमर के पास जाना होगा। लाइक वी आर इन B2B, वी आर कोलैबोरेटिंग विद टाटा स्टील, टाटा ट्रस्ट, TCS। अभी टाटा के साथ हमने ये कोलैबोरेशन किया है कि ऑल ओवर इंडिया उनके जितने भी एंटिटीज हैं वहां पे हम एक पैड वेंडिंग मशीन लगाएंगे और एक इंसिनरेटर मशीन लगाएंगे। अगेन दैट थिंग विल बी लुक बाय मी। बट जो एक B2C जहाँ पे एक पैकेट पैड बेचना है, वहां पे मुझे ऐसे लोग चाहिए जो सामने वाले कस्टमर से खुल करके बात करें, राइट। अगर मैं जाकर के पूछता हूँ रोड पे किसी लड़की से कि विच पैड यू आर यूजिंग, आई हैव गिवन द टैग ऑफ ए परवर्ट। मैं परवर्ट का टैग लेके घूमता हूँ, आई नो। और मैं पूछ भी लेता हूँ। मुझे मुझे अब तो शर्म लिहाज भूल ही गया हूँ मैं, जिस तरह के बिजनेस में है हम लोग। आप यहाँ पे अब होता क्या है ना कि आप मेंस्ट्रुअल हेल्थ पे बात कर रहे हैं, आप गायनेकोलॉजिस्ट के साथ बैठे हुए हैं, बिकॉज वी हैव फ्यू गायनेकोलॉजिस्ट ऑन द बोर्ड, सो दे आर ऑल्सो रिकमेंडिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो वहां पे जब आप मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं तो इट मस्ट गो टुवर्ड द सेक्सुअल वेलनेस ऑफ द पर्सन, ऑफ द कंपनी, सॉरी ऑफ द क्लाइंट। तो आपको Client. बहुत सारी बातें हो करनी पड़ती है, जो अगर आपने थोड़ा सा भी लिमिट क्रॉस करा तो दैट विल बी बिकम वल्गर। वी Yes. हैव टू वेरी मत कॉन्शियसली चूज द वर्ड्स। Right. वो है मार्केटिंग अप्रोच हमारा ये होता है, अंकित, दैट right now we are not into the TV advertisements. We are doing marketing and advertising branding from our social media, and the people who are working with us, वो सारे बच्चे ही हैं, they are doing very good. If you won't believe, एक एक लड़की ऐसी है जो BBA सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, and they are making sales of 1 lakh a month। Great. तो मुझे मुझे क्यों लेना आलिया भट्ट को जाके। Right. That's very good thought. तो और उसके लिए भी पैसा बन जाता है। Hmm. Right. Okay, so sir, next question we have is from Devyani, and she's asking what inspired you to become an entrepreneur, and what motivated to pursue your startup idea. दिव्यानी, आप यहाँ पे इस सीरीज ऑफ लेक्चर्स में हैं, तो आई बिलीव कि आपके लिए मेंस्ट्रुएशन ऐसी चीज होगी कि आपने अपने बॉयफ्रेंड को या ब्रदर को गाली दिया, AC ऑन किया और सो गए, और उसे चॉकलेट्स भी मंगवा लिया। ठीक। आप मैं काम करता था गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा के लिए व्हेन दिस आइडिया पॉप्ड अप, एंड आई वाज इन अ प्लेस कॉल्ड नवरंगपुर। That district is in the border of Andhra Pradesh and Odisha, and that is that second largest producer of maize, Makka. Hmm. So we have seen
वेरियस ट्राइब्स जिन्होंने अभी तक कपड़े पहनने नहीं सीखे हैं, एंड दे आर गुड टू गो बाय ऑन ऑन दैट पेस, उनको कपड़े पहनने भी नहीं है, और हमने उन लोगों के साथ बिजनेस करा है। I have Okay. seen 3 women in one family using the same cloth, not even cloth pad, to manage their menstruation. अब आप सोचो, 2 लोगों को एक साथ आ गया, वो क्या करेंगे पहली बात। और अगर आप क्लोथ भी यूज कर रहे हैं, तो वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पे आप अपने अंडरवियर को या ब्रा को टॉवेल के नीचे डाल के सुखाते हैं, तो आप अपने क्लोथ को जिससे आप मेंस्ट्रुएशन मैनेज कर रहे हैं, आप उसको कैसे धूप में सुखाएंगे 10 घंटे के लिए? दिस इज द रियलिटी। वो Yes. सारे रिपोर्ट्स और कहानियां बहुत अच्छी लगती हैं। आप जाकर के गांव में देखिए, आई हैव सीन वुमेन को प्लास्टिक जो आपका सब्जी वाला देता है ना, पॉलीथीन, वो पॉलीथीन लगा करके खेत में काम करती हैं वुमेन। नहीं झेल पाओगे आप लोग, मैं सच्ची बता रहा हूँ। दोज वुमेन हु आर वेल ऑफ नहीं झेल सकती वो सब। बायोलॉजी उनके लिए भी सेम तरीके से काम करता है। So that was the when that idea popped up in our mind. I talked to my co-founder. She was also very much inspired by this idea, and we started working it out. हमने उनको बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए। उनको सैनिटरी पैड यूज करना भी पसंद नहीं था, उनको करना आता भी नहीं था, तो हमने वो भी सिखाया। हम अभी भी जाते हैं अंडर प्रिविलेज्ड लोगों के पास और उनको फ्री में पैड्स दे के आते हैं कि तुम कम से कम अपने क्लोथ से पैड पे तो आ जाओ, तुम बायोडिग्रेडेबल बाद में सोच लेना। राइट। Right. तो बेसिक नेसेसिटीज पूरी करो पहले। Exactly. That's the harsh reality of India. बिल्कुल। Sir, वैसे there are big brands in the market, like you say Stay Free and Whisper and all. So how are you managing the competition with them? सी, इफ वी लुक एट आवर प्रोडक्ट, तो मैं अपने प्रोडक्ट को डिफाइन करता हूँ बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स। Okay. आप विस्पर, स्टे फ्री, नुआ, आप आजकल के ब्रांड को भी उठाओगे ना, तो बहुत कम ब्रांड्स हैं जो एक्चुअली में बायोडिग्रेडेबल हैं। वी हैव टेस्टेड ऑल द ब्रांड्स इन द सेम लेबोरेटरी, NABL सर्टिफाइड लेबोरेटरी। तो विस्पर का एक पैड कंटेन्स प्लास्टिक इक्विवेलेंट टू 4 to 5 थैला जो सब्जी वाला भैया देता है। ड्यू टू दैट, every woman who has been using that pad, Stay Free or Whisper, must have seen the rashes, cases of rashes, cases of yeast infection, cases of itchiness during the periods. तो हमारा एक वो भी था कि हम इसको कैसे कर्व कर सकते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट्स में 100% बनाना फाइबर है। हमने उसकी पोजिशनिंग ही अलग करी, STP, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड पोजिशनिंग, एंड GTM अप्रोच, गो टू मार्केट अप्रोच। तो हमने मार्केट में अपने प्रोडक्ट को ही अलग तरीके से पोजीशन किया। ये हाईली अफोर्डेबल है इन द चेन ऑफ, इन द एनवायरनमेंट ऑफ द बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड्स। विस्पर या स्टे फ्री प्लास्टिक पैड्स हैं, और उन्होंने कभी क्लेम भी नहीं किया कि दे आर बायोडिग्रेडेबल। Right. और इफ यू सी ए फिगर राइट नाउ, अभी जब हम लोग बात कर रहे हैं, मोर देन 355 मिलियन वुमेन आर मेंस्ट्रुएटिंग इन इंडिया, एंड आउट ऑफ दैट 90% जो हमारा मेंस्ट्रुअल वेस्ट है वो प्लास्टिक है, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। मतलब अगले 500 साल तक वो वही रहेगा। Okay, that's very good thing, sir. So the next question we have is, how do you approach failure and setbacks in your business, and what strategies do you use to bounce back and learn from those experiences? डीजे, तो क्या है ना कि जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था ना ये चीज, तो हमें ऐसे भी लोग मिले थे उस टाइम ना पैडमैन मूवी आई थी, मतलब उसके कुछ दिन पहले। और तो समवन टोल्ड अस दैट मैं तुमको अक्षय कुमार से मिलवा दूंगा। लिटरली समवन टोल्ड अस, एंड वी हैव स्टार्टेड। तो हमें भी लग रहा था कि हाँ यार ये मिलवा देगा। या फिर जब हमारे प्रोडक्ट्स फेल हो गए, एकदम लिटरली फेल हो गए थे मार्केट में,
देन वी थॉट कि यार ये काम हमसे नहीं होने वाला है, क्योंकि इस काम के लिए अच्छा खासा प्रोडक्ट मैनेजर चाहिए, या फिर जो एक्चुअल माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं वो लोग चाहिए। तो दैट इज अ फेलियर फॉर अस, दैट वाज अ फेलियर फॉर अस, दैट वाज सेटबैक्स फॉर अस। या फिर हाँ, जब हम प्रोडक्ट को भेजते थे अपने बायोडिग्रेडेबिलिटी टेस्टिंग के लिए और वो फेल होकर के आते थे, एंड एवरी टाइम टाइम वी वर थिंकिंग कि अब बनाना मुश्किल है यार, कैसे बना पाओगे? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जो टिका रहे बॉडी के साथ। 100% बायोडिग्रेडेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, लगे रहना चाहिए, मेंटर चाहिए, पैसे चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सेटबैक्स में आती हैं जब ये सारी चीज़ें आपके पास नहीं होती। यू हैव टू ऑप्टिमाइज योर रिसोर्सेज। हम्म, सिंपल सी बात है। अब आप मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो इंसिनरेटर मशीन है, इंसिनरेटर मशीन इज समथिंग जो आपके यूज पैड को बर्न कर देता है, खत्म कर देता है, राइट? राइट। उसकी उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री होता है, 1000 डिग्री से 1500 डिग्री तक उसका हाईएस्ट टेम्परेचर। और हमें जो अभी चिप बनाना था, जो हम पैड्स में लगाते हैं, उस चिप को बनाने के लिए भी हमें 1500 डिग्री का फर्नेस चाहिए था। तो अब हमने कुछ यहाँ पे जो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज हैं, या फिर CSIR के कॉलेजेस हैं, तो उन लोगों से कनेक्ट किया कि हमें उनका लैब यूज करने के लिए दो। बट उनके पास वो मशीन नहीं थी जो, या वो फर्नेस नहीं था जिस फर्नेस में 1500 डिग्री तक टेम्परेचर जाए। देन वी थॉट कि हमारे पास ऑलरेडी एक मशीन है जिसका टेम्परेचर इतना है, हम उस मशीन को रीफॉर्मेट कर सकते हैं क्या अपने यूज के लिए? हम्म, तो हमने उस मशीन को रीफॉर्मेट किया, अपने हमने उस मशीन को अपने हिसाब से बनाया कि वो हमारे हिसाब से काम करे। और दैट बिकेम आवर फर्नेस फॉर फ्यू डेज, जब जब तक हमने फर्नेस खरीदा नहीं तब तक। तो आपको यूज करना पड़ता है अपने रिसोर्सेज को बहुत ऑप्टिमाइज्ड वे में। सेटबैक्स राइट। हमेशा होंगे, हर वीक सेटबैक्स लगता है हमें, हर वीक हम कहीं ना कहीं से लगता है कि प्रॉब्लम आ गया है, डेली स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है। बट यू नीड टू लर्न हाउ टू बाउंस बैक फ्रॉम दैट, और एक्सपीरियंसेस से तो लर्न आप कर ही सकते हैं, और कुछ है नहीं। Very well said, sir. So the next question we have is, what advice do you have for aspiring entrepreneurs, and what qualities do you think are, essential for running a successful startup? The first quality is having actually a thoughtful idea। जो आप प्रोडक्ट या सर्विसेज बनाने वाले हो वो इन रियलिटी किसी को हेल्प करे। इफ यू आर बिल्डिंग एन स्टार्टअप जस्ट टू मेक इनकम आउट ऑफ इट, तो आप फेल करोगे। ये मैं लिख के आपको दे सकता हूँ, बाकी कुछ हो ना हो। Hmm. मनी इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ अ स्टार्टअप, मनी इज नॉट द प्रोडक्ट ऑफ एनी स्टार्टअप। वो लोग जो मिलियनियर बने हैं वो मनी को एज ए बाई प्रोडक्ट ही बनाया है। अगर आप एक्चुअल में कुछ ऐसा बनाते हैं जो कि मैनकाइंड के लिए कुछ तो मार्क, कुछ तो क्रिएट करे, एक वैल्यू क्रिएशन करते हो आप, तो पैसे आ जाएंगे। बट पैसे क्रिएट करते हो तो वैल्यू क्रिएट हो जाए जरूरी नहीं है। Hmm. तो एक क्वालिटी अपने आप में रखना कि वट एवर यू आर ट्राइंग टू डू इट एट द बेस्ट। वो ऐसा नहीं है कि आप कुछ नया ले आओगे, बट जो भी आप ला रहे हो वो अभी के करंट प्रॉब्लम या सॉल्यूशन से कितना बेटर है, क्या क्या और स्कोप कवर कर सकता है। अब जो नया फेसबुक आएगा, फेसबुक इज ऑलरेडी नाउ एग्जॉस्टेड, तो अब जो नया फेसबुक आएगा वो क्या सेम फेसबुक जैसा रहेगा क्या? मुझे नहीं लगता। Ah, तो ये सारी चीजें आप जब करोगे तो यू विल गेट टू नो। right. कुछ चीजें एक्सपीरियंस से सिखाती है सर। बिल्कुल बिल्कुल मैम। एग्जैक्टली। सर बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। जी। So the next we have is from Saurav, and he's asking, how do you approach risk management and decision making in your business, and what strategies आप use करते हो to mitigate risk? पहली चीज रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे पॉइंट्स पे होता है। रिस्क मैनेजमेंट जब आप बैकएंड मैनेज कर रहे हो तो भी आपके पास रिस्क होता है। अभी क्या हुआ, मैं आपको रियल लाइफ प्रॉब्लम बता रहा हूँ। हमारे फैक्ट्री में
जो स्टाफ हैं उन लोगों ने थोड़ी तो बदमाशी करी अपने एंड पे, क्योंकि हम लोग दिल्ली में थे। वी वेयर एट अ स्टार्टअप महाकुंभ, वी वेयर रिप्रेजेंटिंग स्टार्टअप इंडिया फ्रॉम द स्टेट, एंड यहाँ पे प्रॉब्लम हुई कि दे हैव डन सम मिस्चीवियस टास्क, एंड उन लोगों को हमने बोला था कि 320 के एक नंबर ऑफ इतने नंबर्स ऑफ पैड्स चाहिए, और उन्होंने 360 का बनाया और भेज दिया जिसको भेजना था। तो जैसे ही इस तरह की चीजें होती हैं, तो आपका एक सिस्टम, देन वी रियलाइज दैट देयर मस्ट बी अ नीड ऑफ अ सिस्टम जहाँ पे ये हम इंस्टॉल कर पाए। मैं कहीं भी रहूं पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में, देयर मस्ट बी एन ऐप। इस ऐप में मैं लॉग इन करूं और मुझे ये पता चल जाए कि मेरे फैक्ट्री में क्या हो रहा है, फैक्ट्री में आज कितने प्रोडक्ट्स बने हैं, कौन से साइज के बने हैं, कौन से टाइप के बने हैं, और वो प्रोडक्ट्स कहाँ पे किस वेयर हाउस में गए हैं। तो जैसे एक एक स्टेप कंप्लीट हो रहा है, तो देयर मस्ट बी समवन हु इज मार्किंग दैट कि ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट हो गया। इस वेयर हाउस में आया तो ये कंप्लीट हो गया, वी हैव रिसीव्ड द प्रोडक्ट, दिस नंबर ऑफ प्रोडक्ट, दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, दिस साइज ऑफ प्रोडक्ट। सो आई विल हैव एन आइडिया कि मेरे बैकएंड में कितना है। अगर आज इंडियन डेवलपमेंट फाउंडेशन ने कॉल करके बोला कि दैट वी नीड 5 लाख पैड्स, तो आई मस्ट हैव एन आइडिया कि मेरे पास 5 लाख है भी या नहीं। मैं उनको कमिट कर दूं, तो ये एक बहुत बड़ा, ये भी रिस्क मैनेजमेंट में आता है कि आप इतना बड़ा रिस्क लेकर के किसी को बोल दिया, आप कहाँ से दोगे भाई। राइट। तो वो चीज आपको सिस्टम इंस्टॉल करनी पड़ेगी पूरे चेन में, फ्रॉम द लोवेस्ट पर्सन हु इज एक्चुअली गेटिंग द पैड फ्रॉम द मशीन, और वो पैकेजिंग कर रहा है, फ्रॉम टू यू। सारे लोगों को सिस्टम पे होना चाहिए। सेकेंड, जो रिस्क आने वाले हैं, जैसे मुझे ये पता है कि लेट्स से कि इस मंथ में मुझे यहाँ यहाँ से फंड आ सकता है, फाइनेंशियल रिस्क की बात कर रहा हूँ, और फंड नहीं आता है तो क्या, मैं ये भी समझ के चलूंगा कि फंड नहीं आने वाला। मैं हमेशा वर्स्ट सिचुएशन अपने दिमाग में लेके चलता हूँ कि फंड नहीं आएगा, चलो अब क्या करूंगा मैं। या फिर अगर मुझे सैलरी देनी है और मैं एक फंड का वेट कर रहा हूँ कि ये फंड आएगा तभी सैलरी दे पाऊंगा मैं, तो फिर मैं शायद कुछ गलत कर रहा हूँ। मुझे वो चीज नहीं करनी चाहिए, और मुझे ये समझना चाहिए कि फंड नहीं आने वाला है। यू मस्ट हैव अ बैकअप प्लान ऑलवेज। प्लान बी हमेशा रहना चाहिए, बट स्टार्टअप का प्लान बी जॉब नहीं होना चाहिए। स्टार्टअप का प्लान बी स्टार्टअप में ही होना चाहिए। हाँ, very well said, sir. So it's all about right planning and right execution. बिल्कुल बिल्कुल। Right. So एकदम next आनंद। question we have. थैंक यू सो मच सर। जी जी, हाँ बताइए मैम। Okay. So next question we have is from Garima, and she's asking कि आप टेक्नोलॉजी के साथ में कैसे डील कर रहे हो? Like how are you staying up to date with the technology? ओके, सो अभी हम लोग, अगर आप AIML की बात करेंगे, तो वी आर डेवलपिंग वी आर अबाउट टू लॉन्च दैट AI। वो जीनी AI का नाम हमने दिया है, क्योंकि हमारे प्रोडक्ट का नाम भी जीनी पैड्स है। तो जीनी Yes. AI, वो AI एक्चुअली कस्टमर्स के लिए होगा, जहाँ पे वहाँ पे बहुत सारी चीजें होंगी। वेयर वी आर ऑल्सो लॉन्चिंग ए प्रोडक्ट कॉल्ड बीड टेक की अगर बात कर रहे हैं, तो दैट बीड विल बी इंसर्टेड इनटू वेजाइना। दैट प्रोडक्ट विल बी यूज्ड बाय गायनाकोलॉजिस्ट। वी आर now becoming the health tech startup. Okay. So not only in the product, that bead will be inserted into vagina, और वो वहाँ पे रियल टाइम डेटा गायनाकोलॉजिस्ट को दिखाएगा Okay. कि वजाइना फ्लूइड से वो बहुत सारे सेंसर्स उसमें लगे होंगे, एंड दैट विल बी टेलिंग प्रेगनेंसी है तो कैसी है, बच्चे का हेल्थ कैसा है। वो सारी चीजें आपको वहीं से पता चल जाएंगी। और अगर प्रेग्नेंट नहीं है तो कोई और प्रॉब्लम है, दैट एवरीथिंग, मॉइस्चर सेंसर, पीएच सेंसर, एवरीथिंग इज देयर। Okay. सो दैट वी आर डेवलपिंग AIML बेस्ड हम लोग ऐप लॉन्च करने वाले हैं। हमारे बैकएंड चैनल को मैनेज करने के लिए हमने ऑलरेडी एक इंस्टॉल कर लिया है, जो हम लोग बैकएंड में मैनेज करते हैं, सो दैट हमें ये पता होता है कि हमारे कौन से वेयर हाउस में कितना मटेरियल है, कौन से टाइप का है, कौन से साइज का है, अभी हम कितना
एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी हम लोग बहुत जल्दी एक्सपोर्ट में घुस रहे हैं, तो अभी हम कितना एक्सपोर्ट कर सकते हैं, अभी हम किसको कितना भेज सकते हैं, एक क्यूमुलेटिव वेयर हाउस का क्यूमुलेटिव डेटा दिखाता है कि सारे वेयर हाउसेस के मिला करके कितने डेटाज हैं हमारे पास, हम्म, है ना। तो ये सारी चीजें हैं। okay, और बताइए, वो कुछ प्रॉब्लम कर रहा था वो। okay, okay, sir. So the last question, sir, we have is from Mr. Anupam Anand. He's saying, "Great session, sir. Just wanted to know to understand your growth chart. Like when you started, what was the sales in the first year, and what are the sales now, and what is your best tried and successful strategy of sales so far?" Sir, when we have started in 2021, our full year sales was around 4 lakhs, 5 lakhs, काफी है, उतना भी नहीं था शायद, 4-5 Per लाख month. का ही सेल्स हुआ था। नो नो, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं। Okay, okay. हाँ, पर ईयर की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हमने ऑलमोस्ट इतने का, इससे ज्यादा का तो फ्री में बांट दिया था हमने। ऑलमोस्ट 10 lakhs के पैड्स हमने फ्री में बांट दिए थे। और जो कुछ लोगों को, कुछ लोग आउट ऑफ पेटी की, चलो यार खरीद रहे हैं तो पैसे दे देते हैं, ये लोग कुछ बना रहे हैं तो काइंड ऑफ वो था वो। 2022 और 2023 के एंड में अभी जो हम लोग फंड ले रहे हैं, विद इन अ मंथ आई थिंक द डील विल बी क्लोज्ड। वी आर raising our fund on the valuation of 15 crores. That's great. Huge number. Wow. तो वो ये टर्न अराउंड करने के लिए 2021 में जब हमने स्टार्ट करा था इसको, तब हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले फेज पे थे, एंड वी रिसीव्ड आवर फर्स्ट ग्रांट फ्रॉम स्टार्टअप इंडिया, देन वी रिसीव्ड आवर ग्रांट फ्रॉम एमएसएमई। तो ये सारे प्रोडक्ट डेवलपमेंट ग्रांट्स थे हमारे। तो बाय 2022 हाफ हम लोगों ने प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में लॉन्च कर दिया था। इन द फर्स्ट 6 मंथ जो हमने मोर देन 200 से ज़्यादा एम्बेसडर्स हायर करे, तो दैट वाज आवर स्ट्रेटजी। सेल्स स्ट्रेटजी बहुत अच्छी रही। हमने ये इंश्योर किया कि जिस कॉलेज में हमारे एम्बेसडर्स हैं, उस कॉलेज में सिर्फ हमारा ही प्रोडक्ट यूज होना चाहिए, नो Okay. मैटर व्हाट। Okay. क्योंकि हम So जाकर के how did केमिस्ट, they, convince the girls कि हमारा ही हाँ प्रोडक्ट यूज करना है? हाँ, इसके लिए हमने बहुत सारे सेशंस लिए, अवेयरनेस सेशंस लिए। हमने उनको समझाया कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। बहुत सारे गर्ल्स को प्रॉब्लम समझ में भी नहीं आता है, मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ। दे आर सो अनअवेयर ऑफ दीज थिंग्स। उनको ऐसा लगता है कि अगर जेंडर चूज करने का ये होता है ना हाथ में हमारे, तो ऐसी कोई लड़की नहीं है जो ये ना कहे कि मैं लड़का नहीं बनना चाहती, Yes. है ना। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल मेंस्ट्रुएशन का भी होता है। तो Right. इस चीज को कर्व करना कि नहीं यार ठीक है, ये मेरे हाथ में नहीं था, एंड आई कैन एंजॉय माई वुमेनहुड। तो इस चीज को हमने प्रमोट करा। हम जितने भी कॉलेजेस हैं अभी हम लोग जा रहे हैं, या फिर एमआईटी नोएडा इवन गए थे हम लोग, जामिया हमदर्द, यहाँ पे जाकर के हमने सिर्फ प्रमोट करा इस चीज को, अवेयरनेस सेशन करे, और हमने इंश्योर करा कि आप यूज करके देखो एक बार, Hmm. आपको समझ में आएगा। ट्रायल पैक्स लो, आप प्रोडक्ट यूज तो करवाओ, लेट देम एक्सपीरियंस द चेंज व्हाट दे Hmm. वेर यूजिंग टिल डेट। और Hmm. अभी हर कैंपस में जहाँ पे हमारे बच्चे एज एन एम्बेसडर काम कर रहे हैं, वहाँ पे मोर देन 80% का वुमेन आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स, व्हेन प्रोफेसर्स आर यूजिंग आवर प्रोडक्ट्स। तो हमें वहाँ पे भेजना पड़ता है पूरा डब्बा का डब्बा। Okay. पहले ऐसे ऑर्डर्स आते थे कि ठीक है सर 10 पैकेट चाहिए, मैं Hmm. 2022 अर्ली की बात कर रहा हूँ, और अभी 2024 है। तो मुझे लगता है कि विद इन 2 years इट ऑल हैपेंड, Hmm. जहाँ पे हमने बस बीच में 2-3 अच्छे लोगों को रखा ऑफ कोर्स, और दे वर्कड फॉर अस गुड। Great, sir. तो सेल्स That's really स्ट्रैटेजी inspiring. वो अच्छा रहा सर कि हमने एक्चुअली कस्टमर को समझाया कि प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम Hmm. को कैसे कर्व किया जा सकता है। यू वोंट बिलीव, हम लोग केंद्रीय विद्यालय जाते हैं, राइट। हम लोगों ने Hmm. केंद्रीय विद्यालय के साथ एक डील साइन करा,
जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं उड़ीसा में, भुवनेश्वर और कटक डिस्ट्रिक्ट में, वी विल कवर दैट फॉर द अवेयरनेस सेशन। तो व्हाट वी हैव फाउंड कि 9th-10th के लड़कियों को पीरियड्स स्टार्ट हो जाता है। जिनको पीरियड स्टार्ट हो गया है, दे फील देमसेल्व्स एज अ बड़ी, मैं बड़ी हो गई, राइट। और उनका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, और जिनको नहीं हुआ है उनको वो इन्फीरियर मानते हैं। और उनका उनका डिप्रेशन है कि उनका कब होगा। ओके, आप समझ रहे हो डिप्रेशन का क्या लेवल है। और वो डिप्रेस्ड है, वो बच्चे डिप्रेस हो गए हैं इस चीज में। that's strange. तो How are they influencing the minds? और इस चीज में आप जाकर के जब बात करते हैं ना, तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आती है कि यहाँ पे प्रॉब्लम ही अलग है। और दे आर फ्रॉम दैट फैमिली विच कैन अफोर्ड इजिली। तो जब आप अफोर्ड कर सकते हैं प्रोडक्ट्स, आप प्रोडक्ट्स अफोर्ड कीजिए। और एक चीज और है, सेल्स स्ट्रेटजी में एक चीज हम लोगों ने बहुत अच्छा किया कि हम, वी आर नॉट जस्ट द सैनिटरी पैड सेलर। हमने इस चीज को, स्कोप को और आगे बढ़ाया, और हमने हर कस्टमर को गायनाकोलॉजिस्ट के साथ कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया कि अगर आपके पास कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जहाँ पे आपको गायनिक का सपोर्ट चाहिए, तो हम आपको फ्री में कनेक्ट करेंगे, आप हमारे पास आइए। और हम नहीं सुनेंगे कि आप और आपके गायनिक क्या बात कर रहे हैं। ओके। तो बहुत सारे हमारे पास रिक्वेस्ट आए, और हमने बहुत सारे लोगों को कनेक्ट करा भी। तो दैट वर्क इन आवर फेवर। उन्हें लगा कि नहीं, विस्पर से आप प्रोडक्ट खरीदते हैं, घर लाते हैं, एफएमसीजी प्रोडक्ट की तरह यूज करते हैं, कहानी खत्म। आपको नेक्स्ट मंथ कुछ नया दिमाग में आता है, कुछ नया खरीद लेते हैं। यहाँ पे आप एक बार आते हैं तो आप रहते हैं। वी आर क्रिएटिंग काइंड ऑफ इकोसिस्टम इन दिस इंडस्ट्री। So तो you're वो है। covering the whole aspect, from gynae to, menstrual health, the whole cycle you're covering. That's really great, sir. बहुत inspiring है. And you are the real change maker of India, I must say. This is the real story. So good to have you today with us. लास्ट ईयर हम लोग नेशनल टेक्नोलॉजी वीक में गए थे, तो वहाँ पे आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर वी मेट। तो हमने बैम्बू से पैड बनाया था। तो उन्होंने देखा और बोला कि ये ब्राउन कलर, बैम्बू का जो पैड्स होता है ना, वो मोस्टली ब्राउन कलर का होता है। Okay. तो वो उन्होंने पूछा कि ऐसा पैड कैसे बन गया ब्राउन कलर का, इसको कलर करे क्या। बट वो नेचुरली ब्राउन ही होता है। तो वहाँ उसके बाद हम लोग मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने फीचर करा था हमारे स्टार्टअप को एज द चेंज मेकर्स। तो उनका एक अलग से चलता है, यहाँ पे वो सब करते रहते हैं वो सब काम। इट वाज गुड। Amazing, sir. Really amazing. So I think we're done with the questions and बहुत ही अच्छा सेशन था, बहुत insightful, very very wonderful, and I must say sir आप real change maker हो इंडिया के. You're doing great job, wonderful. So I think थैंक यू it's सो मच time मैम। to wrap up. And sir, we would like to collaborate with you in further future also. श्योर We सर, would love पक्का to जब help. भी आपको, पक्का जब भी आपको मिले आप मुझे बुलाइएगा, मुझे भी मजा आता है। मैं जाता हूँ क्लास लेने के लिए, तो आई विल डेफिनेटली So कम। I think आप भुवनेश्वर से हो. नहीं, मैं वैसे बिहार से हूँ, आई एम नेटिव ऑफ बिहार। आई वाज Okay. वर्किंग इन भुवनेश्वर विद गवर्नमेंट ऑफ भुवनेश्वर। देन मैंने अपना शुरू किया तो गवर्नमेंट जॉब छोड़ा, तो Okay. यहीं पे कर So लिया स्टार्ट। currently अभी आप कहाँ पे located हो? भुवनेश्वर में, भुवनेश्वर में। Okay. So sir, we would also like to have a podcast with you. जैसे भी आपको टाइम मिलता है आप मेरे को बताना. श्योर श्योर ऑनलाइन श्योर, ऑफलाइन जैसे भी होता है कर सकते हैं. पक्का पक्का। आई विल कॉल, आई विल लुक टू कॉल माय co-founder. She will tell you more about the product, about the whole journey. Okay, okay, that's great. We would love to have you again. So let me श्योर do श्योर sir, there is a comment. We really want to see you in the podcast. श्योर श्योर मैम, Audience सर demand. श्योर, पक्का पक्का सर, पक्का। So let's have a formal closure. थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर झेलिंग मी। No, sir, it was awesome. So, as we bring down the curtain on another yet enlightening session of our 24 webinar series, I stand before you with a heart brimming with gratitude and inspiration. Today, we have the privilege of hearing
from a true visionary leader in the realm of startup. Mr. Anand has provided us with a roadmap of success in today's growing startup world. As we bid farewell to Mr. Anand and reflect on the insights gained, let's carry forward his teachings with us. So, on behalf of the entire Whiteboard team and Deltron Technologies team, I extend our deepest gratitude to Mr. Anand for his illuminating contribution to our webinar series. And once again, I extend my heartfelt thanks to our distinguished speaker for his invaluable contribution, to all the participants for their active engagement and thoughtful questions, and to our organizing team for their dedication in making this webinar a resounding success. Thank you so much, थैंक यू सो मच everyone, for your time and invaluable contribution. थैंक Thank यू you सो so much. मच किसी को भी कोई दिक्कत हो कनेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से Sure, we will. थैंक Definitely, we will. Thank you, sir. Thank you so much. यू Bye.